Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are doing well. I welcome you in the English lesson of class 3. In the previous lesson we did our activities page. We did our question answers, tick and cross, find the words and spell scramble. Hope you people have done it. Now we are moving towards our today's exercise, that is language page. We are doing. This is very much easy. Hope you can see it clearly. So this is about language page. Let's read the question of exercise A. Write the sentences in the correct order. Draw a picture of one story. ठीक है. Here are sentences given to you. आपने उसको rearrange करना है, उसको proper order में लिखना है. You have to write them in proper order. ठीक है. What are the sentences? Then you can go back home. It is nice to have a friend. You can play together. If we rearrange them, if we put them in order, तो हम order में उसको कैसे करेंगे? It will be, it is nice to have a friend. हम इस वाले को पहले ले आएंगे. It is nice to have a friend. You can play together. आप एक साथ खेल सकते हो. Then you can go back home. और आप फिर वापस जा सकते हो. ठीक है? So just like that, we just put them in order. And same here. Then I go to bed. Sometimes I watch cartoons. I like watching television. ठीक है. तो अब हम इसको अरेंज जब करेंगे तो हम उसको सबसे पहले क्या लिखेंगे? I like watching television. Sometimes I watch cartoons. And then I go to bed. This is the way we put them in order. I like watching television. Sometimes I watch cartoons. Then I go to bed. So hope these two exercises are clear to you. These are very much easy. Okay. This you need to understand. Students, you need to pay full attention towards it. You have to understand this. Write the correct word. अच्छा जी. The words are yesterday, now, tomorrow. What you people get the idea from these words? Do you have any idea what are these words and where we use them? Remember, yesterday. Yesterday means that something has been happened, that is done. Something is done, that is no more. We use yesterday. Yesterday का मतलब है कल. कोई काम हुआ था, कल हुआ था, ख़त्म हो गया. Now means अभी. The thing which is continued now, जो अभी भी चल रहा है. Tomorrow जो होगा. ठीक है. Tomorrow हम जाएंगे, हम काम करेंगे. That is tomorrow. The thing which will happen. ठीक है. Okay. Sentences में आपने क्या देखना है? Bought अगर कहीं पे second form आया है, it means कि वो है past tense. पास्ट का कोई भी was आएगा, वर आएगा, bought आएगा, कोई भी पास्ट टेंस का आपको क्लू मिलता है. यू विल यूज़ yesterday. क्या यूज़ करेंगे? yesterday. क्योंकि पास्ट मीन्स के गुज़र चुका है. ठीक हो गया. विल का मतलब है होगा. कोई काम अभी हुआ नहीं है बट वो होगा, तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे टुमारो. टुमारो का मतलब है कल. कल वो काम होगा. आई एम मीन्स आई एम रीडिंग. ये कॉन्टीन्यूअस फॉर्म है. मैं अभी कर रही हूँ. अभी के लिए वी विल यूज़ नाउ. वी विल यूज़ नाउ. याद रखें, जो चीज़ गुज़र गई है उसके लिए यस्टरडे. जो काम होगा अभी वो उसके लिए टुमारो. और जो काम हो रहा है अभी प्रेजेंट में, दैट इज़ कॉल्ड नाउ. उसके लिए हम नाउ यूज़ करेंगे. ठीक हो गया. नाउ लेट्स रीड द सेंटेंसेस. आई बॉट अ बुक. मैंने एक बुक खरीदी. यस्टरडे कल. आई बॉट अ बुक यस्टरडे. मैंने कल एक बुक खरीदी. आई विल नॉट बी फिनिश्ड अंटिल टुमारो. विल आ गया. विल मीन्स फ्यूचर की बात है, कल की बात है. सो वी विल यूज़ टुमारो. आई विल नॉट बी फिनिश्ड अंटिल टुमारो. आई एम रीडिंग इट नाउ. आई एम कर रही हूँ, कर रहा हूँ. आई एम रीडिंग इट नाउ. मैं अभी ये बुक पढ़ रही हूँ. आई सॉ मीन्स के देखा.
देखा मीन्स जो गुज़र चुका है, सो जो गुज़र चुका है उसके लिए वी विल यूज़ yesterday. I saw another book in the shop yesterday. I do not, याद रखिए do not and does not हमेशा present के लिए यूज़ होते हैं, do not, does not. So I do not have the money to buy it now. जो present के लिए यूज़ होता है तो present में हमेशा we use now. ठीक है स्टूडेंट्स, होप दिस एक्सरसाइज इज क्लियर टू यू. यू नीड टू प्रैक्टिस इट कि आप खुद से भी यू कैन राइट सम मोर सेंटेंसेस बाय योर ओन. खुद से सेंटेंसेस बनाएं और इसमें yesterday, now और tomorrow का यूज़ करें. ठीक है, इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. सो होप दिस एक्सरसाइज इज क्लियर टू यू नाउ. अच्छा जी, नाउ एक्सरसाइज सी इज़ व्हाट एम आई. मतलब फ़र्ज़ करिए जिस तरह होता है लाइक पहेली जो होती है उसमें आपको क्लूज़ दिए होते हैं एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वर्ड्स के वो किसके बारे में है. हमें वर्ड्स ऑलरेडी आर गिवन टू यू. केव, माउंटेन, फॉरेस्ट, फील्ड, स्टोन, एप्पल ट्रीज. ये वर्ड्स हमें दिए हुए हैं. दीज वर्ड्स आर गिवन टू अस. व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू पुट देम इन द राइट प्लेसेस. हाउ? आई एम क्वाइट डार्क. आई हैव लॉट्स ऑफ ट्रीज. इट्स वेरी ईजी. डार्क कहाँ पर होता है और कहाँ पर ज़्यादा ट्रीज़ होती है? कहाँ होती है? फॉरेस्ट में, जंगल में ही ज़्यादा ट्रीज़ होती है और डार्क भी, अंधेरा भी होता है. नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन अपने बारे में कह रहा है? आई हैव रूट्स एंड ब्रांचेस. आई हैव फ्रूट्स. वाओ, ये बहुत ईजी है. कहाँ पर ब्रांचेस होती है, कहाँ पर रूट्स होते हैं और कहाँ पर फ्रूट्स होते हैं? एप्पल ट्रीज़ में. गॉट इट? I am dark and cold. I am made of rock. Rock आपको पता है कि जो वो होता है जो स्टोन्स का बना हुआ होता है और अंधेरा जहाँ पर होता है और ठंडा भी होता है. तो वो कौन सी जगह हो सकती है? That can be cave. जो गार होता है. गार किस चीज़ का बना होता है? रॉक का बना हुआ होता है. और क्या होता है उसके अंदर? डार्क एंड कोल्ड. ठीक हो गया. नंबर 4 इज़ आई एम लार्ज एंड स्लॉप्ड एंड यू कैन क्लाइम मी. स्लॉप्ड मीन्स जो तिरछा होता है, जो स्लोप में होता है. स्लोप का मतलब है जो नीचे की तरफ इस तरह होता है. ठीक है, सो दैट इज़ माउंटेन. ठीक है, माउंटेन में स्लोप्स भी होते हैं, लार्ज भी होता है और आप इसको क्लाइंब भी कर सकते हो, आप उसके ऊपर चढ़ भी सकते हो. आई एम स्मॉल एंड हार्ड. यू कैन लिफ्ट मी. मैं छोटा हूँ और सख्त भी हूँ और आप मुझे उठा भी सकते हो. यू कैन लिफ्ट मी. वो क्या चीज़ है? स्टोन. स्टोन छोटा भी होता है, हार्ड भी होता है एंड यू कैन लिफ्ट इट अप ईजिली. ठीक है. आई हैव ग्रास. आई यूजुअली हैव अ गेट. गेट भी होता है और अंदर ग्रास भी होती है, तो वो क्या होगा? फील्ड. फील्ड. ठीक है. सो होप स्टूडेंट्स दिस एक्सरसाइज इज क्लियर टू यू नाउ. You need to practice it, especially exercise B. You need to practice it again and again. As I told you, you can make the sentences by your own by using these words: yesterday, now and tomorrow. Okay, so take care of yourself, students. Thank you so much.